Good morning, students. Chapter 1 National Income is still continued, and today we'll learn about meaning of many terms. First term is per capita income. Per capita means per head, prati vyakti आय. Per capita income is the average per head income. It is income per head of population, and the formula to find it is national income divided by mid-year population. Why mid-year? Because beginning of year and end of year there may be a lot of difference. So we take mid-year population to divide national income to find out per capita national income. What are factors of production? Who help in production? So now we'll see about factors of production in detail. The primary inputs which are needed to produce goods and services are conventionally called factors of production. कि जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिनके पार्टिसिपेशन से किसी भी गुड या सर्विस का प्रोडक्शन होता है, दे आर नोन एज factors of production, and main division of these factors of production are land, labor, capital and entrepreneur. So 4 factors of production are main. So first of all, land. It refers to all natural resources which are gifts of nature, and the natural elements like soil, rivers, water, forest, mountain, minerals, deserts, sea, climate, rain, all factors are related to land, because whatever is the gift of nature is related to land. Second is labor. Human efforts done mentally or physically with the aim of earning income is known as labor. Labor is either physical or mental. Both efforts are known as labor. So land is a passive factor and labor is a active factor. Third is capital. All man-made goods which are used for further production of wealth are included in capital. So these are man-made material source of production, and examples are machines, tools, buildings, roads, bridges, raw material, trucks, factories, all capital goods which are used for further production, they all are included in capital. Next is entrepreneur. An entrepreneur is a person who organizes the other factors and undertakes the risk and uncertainties involved in the production. तो एंटरप्रेनर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो सारे अदर फैक्टर्स को इकट्ठा करता है, असेंबल करता है और प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट करता है, साथ में रिस्क बेयर करता है. सबसे बड़ा एंटरप्रेनर का जो रोल है वो है रिस्क बियरिंग. रिस्क अगर वो बियर ना करे तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं करेगा. अब रिस्क किस चीज़ का है कि जिस भी पर्टिकुलर गुड या गुड का प्रोडक्शन वो करने जा रहा है उसकी मार्केट फ्यूचर में कैसी होगी, दैट इज़ ऑलवेज अनसर्टेन. वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट मार्केट टेंडेंसीज कि वेदर इट विल गो अप और डाउन, वी कांट से. सो entrepreneur is that person who takes the risk of uncertainties and starts the production work. Next, consumption of fixed capital. These terms we are reading about, these all are used in accounting of national income. ये जो सभी terms हम आपको जिनके meanings बता रहे हैं ये सभी national income accounting में use होती हैं. That's why we are telling the meaning. Now consumption of fixed capital, it is the other name of depreciation. Yesterday we have read about depreciation. कि depreciation क्या है? Natural wear and tear of capital goods. That is depreciation. कि जो production process में जो fixed assets use होती हैं उनमें टूट फूट होती है, wearing and tearing होती है, उनकी value fall होती है, that is known as depreciation, and consumption of fixed capital is other name of it.
fall in value of fixed factors due to normal wear and tear and expected obsolescence. एक और टर्म इसके साथ एडेड है, expected obsolescence is called consumption of fixed capital. तो normal wear and tear that is already explained to you. ये मशीन्स हैं, टूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और ट्रक, रेल इंजन, इनको जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं तो इनमें घिसावट होती है, वेयरिंग एंड टेयरिंग होती है और इनकी वैल्यू डे बाय डे फॉल होती जाती है. और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस क्या होता है कि ऑब्सोलिसेंस इज़ अनदर रीज़न फॉर डेप्रिसिएशन. इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. की टाइम के साथ जब टेक्निक चेंज हो जाती है तो जो पुरानी टेक्निक के जानने वाले हैं, ओल्ड टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी वैल्यू, उनकी डिमांड ख़त्म हो जाती है. और उससे क्या होता है कि जो वो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली जो मशीन्स होती हैं उनकी वैल्यू ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, फॉल इन वैल्यू. लेकिन किस वजह से हुआ? चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड. जब डिमांड चेंज हो जाती है तो जो नए फैशन के गुड्स होते हैं उनको बनाने वाली मशीन्स का यूज़ होने लगता है और जो पुराने फैशन की चीज़ें होती हैं या जो चीज़ें पहले डिमांड में होती हैं उनको बनाने वाली मशीन्स ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है. दैट इज़ ऑल्सो फॉल इन वैल्यू and it is another reason, that is expected obsolescence. So what is the significance of consumption of fixed capital कि इस टर्म का क्या यूज़ है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में. तो ये जो डेप्रिसिएशन है या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, दिस इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट नेट इनटू ग्रॉस एंड ग्रॉस इनटू नेट. यानी कि दो वैल्यूज़ हमने पढ़ी थी, एक तो ग्रॉस वैल्यू टोटल जिसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू एडेड है और दूसरी नेट वैल्यू जिसमें से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को लेस कर देते हैं. सो इन नेशनल अकाउंटिंग ग्रॉस वेरिएबल्स, कोई भी ग्रॉस वेरिएबल्स हैं, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इन सभी में से जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब उसकी नेट वैल्यू आ जाती है. सपोज़ जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इन द सेम वे सभी जितने भी ग्रॉस वेरिएबल्स हैं वो नेट वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ टू माइनस डेप्रिसिएशन फ्रॉम दैट. एंड कैपिटल लॉस, दैट इज़ ऑल्सो टोल्ड ऑन येस्टरडे कि अगर अचानक कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, फायर हो जाता है या फ्लड आ जाता है, तो उसकी वजह से अगर हमारी मशीनरी ख़राब हो गई, हमारी फैक्ट्रीज़ ख़राब हो गई और हमारी इनका लॉस हो जाता है हमको, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है. डेप्रिसिएशन तो नेचुरल प्रोसेस से जो हो रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस से हो रहा है, दैट इज़ डेप्रिसिएशन. बट अगर अचानक कोई कैलेमिटी हो गई और उसकी वजह से हमारी एसेट्स ख़राब हो गई तो दैट इज़ कैपिटल लॉस. नेक्स्ट टर्म्स आर फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस, FC एंड MP. ये भी बहुत दो इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमने नेशनल इनकम में यूज़ करनी है. So factor cost refers to all factor payments made by the producing units or firms to the factors of production for their contribution in the production of goods and services. Goods और services के production में जो भी factors use किए जाते हैं, जो उनकी cost है या उन factors को किए जाने वाला payment है, that is factor cost. यानी फैक्टर्स के ऊपर आने वाली कॉस्ट, यानी फैक्टर्स के ऊपर किए जाने वाला खर्च, फैक्टर्स को दिए जाने वाली पेमेंट्स, ये है फैक्टर कॉस्ट. और दूसरी टर्म है मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस इन विच अ कमोडिटी इज़ सोल्ड एंड परचेज्ड इन द मार्केट. और मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पर वो चीज़ मार्केट में बेची जा रही है, बिकॉज इट इज़ मार्केट प्राइस. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? फैक्टर कॉस्ट यानी जो हमने फैक्टर्स को पेमेंट की, जो हमारा खर्चा आया, जो हमें कॉस्ट पड़ी, क्या कोई भी प्रोड्यूसर उसी कॉस्ट पर मार्केट में सेल करेगा जिस कॉस्ट पर उसको वो चीज़ पड़ी है? नेवर. उसके बीच में उसको कुछ टैक्सेस भी गवर्नमेंट को पे करने हैं, तो उसमें आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. फैक्टर कॉस्ट में जब हम NIT नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है मार्केट प्राइस. तो NIT को FC में फैक्टर कॉस्ट में प्लस करके बनेगा मार्केट प्राइस
मार्केट प्राइस में से NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हालांकि फैक्टर कॉस्ट के अंदर एक प्रोड्यूसर का अपना प्रॉफिट भी एडेड होता है, लेकिन वो प्रॉफिट बीच में मर्ज कर दिया जाता है और उसको शो नहीं करते हैं। शो किया जाता है सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्सेस जो एक प्रोड्यूसर को गवर्नमेंट को पे करने हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्सेस विच आर लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन and sale of commodities are called indirect taxes. Students, taxes are of two types: direct taxes, indirect taxes. Direct taxes which are imposed on a person and its burden is on the same person, they are direct taxes like income tax, जिस पर लगाया जाता है उसका बर्डन उसी पर पड़ता है, उसी को पे करना होता है, that is direct tax. और इनडायरेक्ट टैक्स एक पर्सन पर लगाया जाता है बट दैट इज शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन, उसको इम्पोज एक बंदे पर किया जाता है लेकिन वो उसको शिफ्ट दूसरे पर कर देता है और उसका बर्डन अल्टीमेटली दूसरे पर्सन पर पड़ता है। तो इस तरह का टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो प्रोड्यूसर्स पे करते हैं ये है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये लगाया जाता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, सेल पर, बट इट्स बर्डन अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द consumer, that is merged in the price and it's ultimately paid by the consumer. That tax is shifted, that's why this is indirect tax. And what are subsidies? These are cash grants given by the government to the enterprises to encourage production of certain commodities or to sell goods at price lower than the market. These are subsidies. सब्सिडीज़ वो फाइनेंशियल ग्रांट है, कैश ग्रांट है जो गवर्नमेंट देती है एंटरप्राइजेस को, प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स को कोई पर्टिकुलर गुड बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है, उसकी कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट में जनता को, पब्लिक को वो चीज़ कम रेट पर मिले। अब वो अपनी कॉस्ट से कम करके तो उस चीज़ को बेचेंगे नहीं, वो तो लॉस बेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है कि अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर गुड के प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहती है तो वो गवर्नमेंट उन प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देती है और वो गुड फिर मार्केट में कॉस्ट से कम रेट पर बिकता है, पब्लिक के लिए चीप रेट पर बिकता है। तो ये गवर्नमेंट जिन गुड्स के सेल को, जिन गुड्स के प्रोडक्शन को, जो गुड्स पुअर पीपल की नेसेसिटीज़ हैं, ऐसे गुड्स पर गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडी देती है ताकि वो गुड्स चीपर रेट पर मार्केट में सेल आउट हो सकें। सो आई हैव टोल्ड यू द सिग्निफिकेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को हम माइनस कर देते हैं और फैक्टर कॉस्ट में NIT हमने प्लस कर दिया तो मार्केट प्राइस बन गया। मार्केट प्राइस में से NIT को लेस कर दिया तो फैक्टर कॉस्ट वी गेट। So students, do revise daily. I am saying you again and again because only after revision you can understand it. That's all for today. Thank you.